This is Advanced Accounting, December 2023 question paper I am discussing today. From the following particulars, this is the theory you have to learn. What is part A? Answer any 5. Each carry 4 marks. Out of 8 questions, any 5 you have to do in the short. So what is revaluation account? You have to learn the theory, purchase consideration. What are the methods to be calculated in purchase consideration? Now I am doing this problem number 4. From the following particulars ascertain the change in inventory. So in change in inventory, it has given in the question raw material purchase, work in progress, finished goods, opening, and on 1/4 work in progress and 1/4/2020 finished goods. Raw material and finished goods it has given, work in progress, and this is closing it has given. So computation of change in inventory, opening stock, work in changes, opening stock we have to take first work in progress 20,000 and closing work in progress we have to take 25,000. It's clear? First we are taking opening work in progress, then closing work in progress. From there we have adding finished goods. So finished goods opening is 1 lakh rupees. So total we are getting 1,20,000. And finished goods closing we got 75,000. So 1 lakh. Therefore the total change in inventory is decreased 20,000. So just if work in progress and finished goods we have to consider, we have to add, and we have to see the difference. So 20,000 difference we are getting. Raw material are not considered as they are taken under the cost of material consumed. Is clear? Raw material we have to ignore in this. If you get in the short this type of problem, you have to ignore raw material. Raw material को ignore करना है. Only work in progress opening, work in progress closing को लेना है. And finished goods opening, finished goods closing दोनों को total करके जो भी difference आ रहा inventory decrease हो रही बोल के अपने को लिखना है. Now next for the following calculate the value of goods at 3-year purchase of super profit. Value of goodwill we have to find. Average capital employed दे दी अपने को ऑलरेडी यहाँ 10,000 this is 1 lakh 1 lakh. And net profit for the past 3 years it has given 3-year profits. Rate of return expected 10% on capital employed it has given. Fair remuneration to the organizer 20,000 per annum it has given. So value of goodwill formula we have super profit into number of years. पहले value of goodwill का formula क्या है? Super profit into number of years. अब super profit मालूम करने के लिए अपने को formula है average profit adjusted minus normal profit. Average profit adjusted के लिए average profit में से fair remuneration को minus करना है. It's clear? एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 3 ईयर्स का अपने को जो टोटल प्रॉफिट दिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करे तो अपने को एवरेज प्रॉफिट आ जाता. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट में से फेयर रिम्यूनरेशन जो है ना वो माइनस करे तो अपने को एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड आता. उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्वेश्चन में दे दिया. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिए एंड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिए. 10 lakhs into 10 by 100. So 1 lakh we are getting normal profit. It's clear? Everything is given to us. Just formula याद रहना है अपने को. Super profit into number of years से करना है. Number of years 3 years दे दिए. Super profit के लिए पहले अपने को क्या होना है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट होना है, नॉर्मल प्रॉफिट, दो चीज़ें होना है. एवरेज प्रॉफिट कैसा मालूम करें अपन? टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स. अगर फेयर रेम्यूनरेशन दिए तो माइनस करना है. ठीक है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आता? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो भी रहता. सो 1 लाख. सुपर प्रॉफिट जस्ट इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन. एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख. सो सुपर प्रॉफिट 25,000. गुडविल का फॉर्मूला अपन पहले लिख दिए ना. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. सुपर प्रॉफिट 25,000 वी गॉट इट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 3 years इज गिवन इन द क्वेश्चन. 75,000 गुडविल. इट्स क्लियर नो? Ascertain the yield value of share of Swadeshi Limited. Yield value of share we have to find out. Average rate of dividend declared by the Swadeshi Limited 20%. Normal rate dividend decreased by the company engaged in similar business 15%. Paid up value of share of the company is ₹10. So yield value share का formula क्या है? You have to learn the formulas, then only you can pass the exam. So expected rate is average
rate by normal rate into paid up value of share. So 20% it has given, no, divided by normal rate 15% into paid up value of share is 10. So 13.3 we are getting yield value of each share. It's so easy. 4 marks you will get for that. Now next we have difference between sacrificing ratio and gaining ratio. This theory you learn. State the basis for a division of the following expenses: business pre-incorporation and post-incorporation. सैलरी टू वर्किंग मैनेजर, यहाँ पर अपने को सैलरी टू वर्किंग मैनेजर, रेंट ऑन बिल्डिंग, डायरेक्टर फी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये कैसा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में करना है अपने को, दैट यू हैव टू सी फॉर दैट. नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर पार्ट बी. पार्ट बी 5 questions each carry 12 marks. For total 60 marks you will get from part B. So answer all the questions. Internal choice will be there, no, 9 or in 9A or B, in 10A or B, like that. So this time compulsory maybe you will get admission of the partner. Last time the paper was so tough, unexpected theory questions were asked, but now this time you get the confidence that you will pass if you practice the problems. You may get it, that admission of the partnership. Every time it has asked, but last year it has asked theory, so most of the students were failed and did not attempt the paper properly. But here now you practice it. The following is the balance sheet. The following is the balance sheet of X and Y on 31st March. Z was admitted. So admission of the partner. This is the problem based on admission of the partner. Balance sheet it has given, and 3:2 the profit sharing ratio है लोगों का. रिवैल्यूएशन एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, स्टॉक 16,000. रिवैल्यूएशन का रूल क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम मान दो, एडमिशन ऑफ द पार्टनर रहने दो आपको या रिटायरमेंट रह दो, रिवैल्यूएशन का फर्स्ट रूल याद रहना आपको कि रिवैल्यूएशन में एसेट्स जो है सो डिक्रीज हुए तो डेबिट साइड में लेते, एसेट्स इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में लेते. सो एनी चैप्टर का जो भी की पॉइंट है वो पॉइंट को आप माइंड में रखना, कैसा भी पेपर आन दो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते. सो डोंट लर्न दैट दिस ओनली विल कम इन दिस प्रॉब्लम अदर थिंग्स. नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन दैट वेदर इट इज एसेट और लायबिलिटी. एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लेना है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट में लेना है. ठीक है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट में, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट में. ये आपको पॉइंट्स याद रहना है. सो अपने को यहाँ पर एसेट्स जो है एडमिशन में एडजस्टमेंट में दे दिए 18,000 एंड स्टॉक 16,000. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग प्रीवियसली 8,000 था, अब एडजस्टमेंट में 18,000, तो इंक्रीज हो रहा तो आपको क्रेडिट साइड में लेने का है. स्टॉक भी जो है सो पहले बैलेंस शीट में जो है स्टॉक की वैल्यू 12,000 थी, नाउ दे आर मेकिंग इट एज 16,000, इंक्रीज हो रहा, क्रेडिट में लेना है 4,000. जितना इंक्रीज हो रहा डिफरेंस यू हैव टू टेक इट हियर. गॉट इट. रिवैल्यूएशन के थ्रू द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 2,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 4,000 था पहले, अब 2,000, तो लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं वो लोग, डिक्रीज कर दे रहे. इट हैज नॉट टेकन हियर. द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हैज डिटरमाइंड एट ₹2,000. नेक्स्ट, ब्रॉट इज एन गुडविल 10,000. It was further cash make his capital 20% of the combined capital of X1 partners are now revaluation adjustment are completed. So in this problem, building we have taken, stock we have taken. Workman compensation actually we have to take it into the partners capital account. We have to distribute among the partners. So 14,000 we are getting 2 items. These 14,000 we have to distribute among the old partners X and Y in their ratio. रिवैल्यूएशन का जो भी आंसर आता क्रेडिट साइड में अपने को जो भी अगर यहाँ आइटम्स रहते उसको माइनस करने का रहता, जो आंसर आता वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का जो भी कैपिटल रहता एक्स वाई का यहाँ पर अपने को क्रेडिट साइड में लेना रहता. ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स कैपिटल इज 10,000 एंड वाई कैपिटल इज 8,000. रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया वो वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दिस पार्टनर. जनरल रिजर्व फंड जो भी रहता ओल्ड पार्टनर्स का रहता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिए अपने को बैलेंस शीट में वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सो वॉट एवर द पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू रिमेंबर दैट ऑल्सो.
It's clear? Not only general reserve, profit and loss account and reserve fund if it is given, that also you have to distribute here. Premium for goodwill 10,000. Now goodwill, what it has given in the Z was being further cash. This is given the further share. So prepare evaluation account, capital account, bank balance sheet consideration. So since X यहाँ पर in the working note you see calculation of sacrificing ratio. Old ratio is 3:2. New ratio is 2:1. It has given 2/5, 2/5, 1/5. So new ratio, sacrificing ratio, how we will get it? Old ratio minus new ratio. So since X sacrificing 1/5, Y sacrificing is 0. So out of profit sharing, the amount premium of goodwill 10,000 will be received by X only. बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स अपने को यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दिए, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को वाई का 0 आ रहा है, इसलिए गुडविल एक्चुअली अपन नॉर्मल प्रॉब्लम्स में गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते. ठीक है, यहाँ पर अपने को न्यू रेशियो भी दे दिए, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लिया हम. अगर वाई का 0 आ रहा तो गुडविल सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ एक्स को यहाँ पर देना है. इट्स क्लियर नो? सो आफ्टर डूइंग द टोटल वी गॉट दिस बैलेंस. नाउ इन by balance brought down, by cash in Z capital 12,000, to balance brought down, that's all. In the old new partner we have to write that much only. Cash account बनाना है, by balance brought down. कैश अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करना रहता, जो क्वेश्चन में कैश दिए अपने को वो कैश ले लेना है. जेड कैपिटल 12,000 न्यू पार्टनर ला रहे, सो एंड गुडविल, सो टोटल 31,000 कैश वी आर गेटिंग. अब बैलेंस शीट इज सो सिंपल, ये क्वेश्चन को सामने रखना है अपने को. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2,000 करना है अब. ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं करे अपन, एज इट इज ले लेना है. जनरल रिजर्व ऑलरेडी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. कैपिटल्स एक्स वाई जेड, दिस आंसर व्हाट वी गॉट इन द कैपिटल अकाउंट. नो, कैपिटल अकाउंट में जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर अपने को लेना रहता. ठीक है, कैश इन बैंक जो बैलेंस आया अपने को कैश का 31,000 वो लेना है. स्टॉक इंक्रीज करे सो 16,000. ठीक है, इंक्रीज ऐड करके लेना है. प्लांट एंड मशीनरी वी हैव नॉट डन एनी चेंजेस. 10,000 प्लांट एंड मशीनरी जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में है एज इट इज ले लेना है वो. देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करे सो डेटार्स की वैल्यू एज इट इज. इट्स क्लियर नो? Now combined capital of X and Y are evaluation adjustment 39,200 plus 20,300 16 टोटल 60,000 आ रहा. ठीक है, 20 बाई 100 करे तो बैलेंस जो भी आ रहा दैट इज द Z कैपिटल हियर 12,000. हाउ वी गॉट द Z कैपिटल? Z कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव इट हैज गिवन इन द एडजस्टमेंट ना. कंबाइंड कैपिटल लेना है उन लोगों का 20%. तो एडजस्टमेंट यहाँ पर करने के बाद ये जो भी आंसर आता है उन लोगों का अपने को दो का 39,000 20,800 ये दोनों को ऐड करके 20% करें तो अपने को Z का कैपिटल आ रहा. ठीक है, द Z कैपिटल दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज 12,000. इट हैज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. इफ इट इज नॉट गिवन कंबाइंड, इफ इट इज गिवन यू हैव टू फाइंड लाइक दिस. अदरवाइज इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली यू हैव टू टेक इट. इट्स क्लियर नो? नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th. द पार्टनरशिप बिटवीन सचिन एंड महेश. So I am going okay, the partnership, this is the 10th question. A or B you have to attempt. The partnership between Sachin and Mahesh was dissolution of partnership. This is 31st March 2020. On that 2020, on that date the respective credit to the capital were Sachin 1 lakhs and Mahesh 60,000. Bills payable and sundry creditors the firm 15,000 30,000 respectively. The Ashish represented by the above realized 1,60,000. The assets represented by the above realized is 1,60,000. The expenses of the realization were 3,000. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm with necessary working. So ये realization account है, dissolution of the firm. realization account में क्या करना रहता है अपने को? assets की पहले जो भी book value है, so sundry assets it has given as 2,05,000 and bank expenses is 3,000. And bank liabilities discharge is 45,000. So how sundry liabilities is 30,000. creditors bills payable 45,000 they have to pay. No, पहले liabilities क्या पे कर रहे हैं उन लोगों को 45,000 पे करना है, वो liabilities को discharge कर देना, 45,000 पे कर देना. ठीक है, बैंक assets कितने हैं उन लोगों के? the respective such in one the bills payable respectively the assets realized value 1,40,000. realization value of the assets is 1,40,000 it has given.
and expenses 3000 it has given. So loss on the bank expenses 3000 it has given. To sundry asset, the assets total value is 2,05,000. So from there they have realized is for 1,60,000. सो जो भी आ रहा लॉस आ रहा वो लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो रियलाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, मेन पॉइंट, एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू रहती वो डेबिट साइड में लेने का रहता. ठीक है, एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू रहती वो आपको डेबिट साइड में लेने का है, और उसका जो पेमेंट आता अपने को सेल करे सो क्रेडिट साइड में. लाइबिलिटीज़ की जो भी बुक वैल्यू, लाइबिलिटी जो पे करना है लोगों को 15,000 30,000 वो पे करना जो है क्रेडिट में दिखाना है. टू बैंक बोल के उसको डेबिट में लेने का है. इट्स क्लियर नो. सो लॉस जो भी आ रहा लोगों को यहाँ पर जो है सो लॉस दे आर गेटिंग 40,000. सो 1/2 we have to distribute among them. If it ratio, if it is not given equally, we have to distribute. Next, partners capital account by balance brought down. जो भी लगा रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड में आ जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर है. एंड देन बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बैंक 1,60,000 जो अपने को बैंक का एसेट्स का यहाँ पर आता बैंक अकाउंट में वो डेबिट में ले लेना. लायबिलिटीज़ के जो भी एक्सपेंसेस वो रहते हैं वो क्रेडिट में ले लेने हैं अपने को. सो रियलाइजेशन लायबिलिटीज़ एक्सपेंसेस, सचिन कैपिटल 70,000, महेश कैपिटल 42,000. हाउ वी गॉट दिस 2,05,000 it has not given opening assets. For that we have to prepare memorandum balance sheet. If opening stock is not given, sundry creditors, bills payable दोनों का कैपिटल मिला है तो जो भी हो रहा वो आपका जो है सो सन्ड्री एसेट्स हो जाता. 2,05,000 जो अपन यहाँ पर ले रहे वो अपने को एसेट्स की वैल्यू नहीं दी अपने को. ठीक है, कैपिटल दे दिया उन लोगों का और लायबिलिटीज़ के क्रेडिटर्स वो दिए, वो पूरों को ऐड कर लेना. बिकॉज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी नो. सो यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटीज जितना भी रहा एसेट्स उतना रहता. उसके लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए अपन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दी अगर तो यहाँ पर अपने को इक्वली शेयरिंग रेशियो करने का है. ठीक है, देन 70,000 42,000 76 दिस आंसर 1 लाख टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट में अपने को क्या लिया अपन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन जो भी लॉस आ रहा 30 30,000 and 18,000 realization loss it has given wrong. So 70,000 42,000 actually we are getting the answer. So this will tally. बैंक अकाउंट जो है आपका टैली हो जाता. ठीक है, डिसोल्यूशन में आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है, कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो, नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू गेट इन टू द एग्जाम, बेसिक पॉइंट्स दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले आपको एसेट्स की वैल्यू लेना रहता. अगर एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिए तो मेमोरेंडम अपने को लायबिलिटीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लेके मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है. पूरा टोटल कर लेने के बाद जो भी आंसर आता है वो एसेट्स की बुक वैल्यू हो जाती है. अगर एसेट्स की बुक वैल्यू क्वेश्चन में दिए तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं आप. ठीक है, ये प्रॉब्लम में नहीं दिए इसलिए अपन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिए. फिर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज जो भी डिस्चार्ज कर रहे लोग, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड लेते, बुक वैल्यू को, पेमेंट को डेबिट साइड में लेते, एसेट्स की बुक वैल्यू को डेबिट में लेते, जो भी आंसर आ रहा सेल करे सो वो क्रेडिट में लेते. सो लॉस दे आर गेटिंग. सो दिस लॉस दिस इज 30,000 एक्चुअली. वो लॉस को अपने को यहाँ पर क्या करना है, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस को यहाँ ला लेना है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन में जो 1,60,000 दिए वो ले लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. जो भी आंसर आता है वो टू बैंक बोल के लिखना. ठीक है, वो आंसर को आपको फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्या करना है, जो भी अपने को यहाँ पर पहले बैलेंस शीट में बैंक बोल के जो क्रेडिट में लिए वो डेबिट में ले लेने का है. डेबिट में जो लिए वो क्रेडिट में लेना है. एक्सपेंसेस लायबिलिटी एंड सचिन और महेश का कैपिटल ये टैली हो जाता. दैट्स ऑल. बैलेंस शीट नहीं रहती डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में. इट्स क्लियर नो. नाउ नेक्स्ट I am discussing one topic only, so that you will get the idea how to attempt all the units. Okay, so in the third unit bonus share theory you learn guidelines issued by the SEBI. So this is the important answer. You learn it. What is bonus share? What are the guidelines by SEBI for issued of bonus shares? It's clear. This is the theory question. You learn it. Now B question we'll see. On April 1, 2020, the directors of Manasa Company Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each of 13 per share payable of rupees 6 on application including premium and allotment. Balance on October 2020 application to 1,20,000 shares were received. On the 80,000 were returned and the exceed of the application money was utilized in the part payment of the allotment money. सो ये चैप्टर के लिए आपको बेसिक जनरल एंट्रीज याद रखना है. ठीक है, जनरल एंट्रीज लिखना रहता इसमें अपने को. वन एप्लीकेंट होम
100 shares has been allotted, failed to pay amount due on call and his shares were forfeited. तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जब इशू करते हैं कोई भी कंपनी में तो अपने को 4 चीज़ें रहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रहता, अलॉटमेंट रहता, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसके 4 के एंट्रीज अपने को एक ड्यू की लिखना रहता और एक जो है सो जो भी अपने को पेमेंट कर रहे हैं वो एंट्री लिखना रहता, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। टोटल 8 एंट्री रहते, लेकिन अगर कोई एक कॉल फेल हो गया तो फोरफिटेड कर लिए तो वो एक एंट्री कम होती। इट्स क्लियर नो? क्या क्या रहते अपने को? एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के एंट्रीज पास करना रहता अपने को। इट्स क्लियर नो? सो बोनस बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन, पहले अपने को एप्लीकेशन आ जाते हैं ना, जब अपन इक्विटी शेयर्स इशू करें तो पहले अपने को पैसे आते, एप्लीकेशन फॉर्म देते। आप कॉलेज को गए अगर एडमिशन लेने के लिए तो पहले आप एक फॉर्म लेते, वहाँ से पेमेंट कर दे। तो वैसे यहाँ पर कंपनी में भी पहले जब एप्लीकेशन देते हो लोग पब्लिक को तो लोग उनसे पैसे लेते हो लोग फॉर्म के। तो एप्लीकेशन का एक रेट कितना है, कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे लोग? 1,20,000। एक एप्लीकेशन का रेट 6 रुपीज़ है। सो 7,20,000 पहले एप्लीकेशन के पैसे आ रहे बोल के लिखना है अपने को। बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर एप्लीकेशन के जो 7,20,000 आए उसमें से 1 लाख एक्चुअली कंपनी 1 लाख की शेयर इशू करना चाह रही, जो एक्सेस बढ़ के है वो लोग जो है सो शेयर प्रीमियम को ट्रांसफर कर रहे। तो यहाँ पर जो है सो 1 लाख शेयर्स जो है 3 रुपीज़ शेयर कैपिटल को 3 रुपीज़ से जो है सो यहाँ पर ट्रांसफर करना रहता है। एक्चुअली कंपनी कितने करना चाह रही और एप्लीकेशन का रेट एक्चुअल कितना है, ठीक है, वो अपने को लेने का रहता है यहाँ पर। सो 13 पेएबल ऑफ ₹6 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन में जो 6 रुपये है उसमें प्रीमियम के भी पैसे 3 रुपीज़ है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलग एंट्री लिखना, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन टोटल 7,20,000 आ गए। शेयर कैपिटल को जितने इन लोगों को ट्रांसफर करना है, जितना एक्चुअल रेट है वही ट्रांसफर करना शेयर कैपिटल को, ठीक है। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़। जो एक्स्ट्रा लोग प्रीमियम के हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलग से दिखाना 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले रहे हो 40,000 रुपीज़ एंड टू बैंक 80,000 रुपीज़ रिटर्न कर दे रहे। शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को जो है सो लोग रिटर्न भी कर दे रहे। 80,000 इट हैज़ गिवन नो कैश रिसीव 80,000 वॉज रिटर्नड, ठीक है। इसमें से क्या कर रहे लोग? 3 लाख जो है इक्विटी शेयर को ट्रांसफर कर रहे, 3 लाख जो है सो शेयर प्रीमियम के है, 80,000 जो है ना आपके बैंक को रिटर्न कर दिए, बाद जो बच रहे वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे। इट्स क्लियर नो? नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू। नेक्स्ट ये शेयर एप्लीकेशन के 2 एंट्री हो गए। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ से जो भी लिखते हैं पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। 1 लाख 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का रेट है, 3 लाख रुपीज़। नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू 40,000 ऑलरेडी अपने को आगे ना यहाँ पर एडजस्ट कर लिया अपन, तो 3 लाख में से अब खाली शेयर अलॉटमेंट के 2,60,000 रुपीज़ आना है। तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट 2,60,000। देन शेयर फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल हुआ उसमें, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 रुपीज़ है उसका रेट, 4 लाख रुपीज़। नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू, इसमें से जो है सो एक जने 100 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो 199,900 शेयर्स ही अपने को यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो रहा इंटू 4 रुपीज़ से 3,99,000। अब जो 100 शेयर्स के 4 रुपीज़ से पैसे जो नहीं आए 1,000 शेयर्स के, वो क्या करना रहता अपने को? शेयर फोरफिटेड कॉल अकाउंट 100 इंटू 400 जो है सो जो अपन एक एक्स्ट्रा आए उसमें एडजस्ट कर ले रहे अपन। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट 6 रुपीज़ 600 रुपीज़, ये 1,000 रुपीज़ को अपन यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहे, ठीक है। 1 applicant 100 shares has been allotted, failed to pay the amount due on call, his share were forfeited। उसके पैसे अपन रख लिए, ठीक है। तो शेयर फोर्टेड 6 रुपीज़ रख लिए अपन। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 रुपीज़ अपने को नहीं आए, फाइनल कॉल के 600 रुपीज़ आए, सो अपन फॉरफिट कर लिए वो। इट्स क्लियर नो? सो दिस आर द एंट्रीज यू हैव टू पास। आर यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड you want me to continue this more problems, then you comment me, I will continue it. So all the best for your exam.